Hello, dear viewers and my dear pupils. I welcome you once again to my channel, the English Learning Channel. Its earlier name was English Grammar and Literature Teacher Amroha, but now I have changed the name for some reason. I have a request to make. If you like this video, please do not forget to press the like button. And if you have got to say anything, you may contact me directly by writing your comment in the comment section. And if you have not already subscribed to my channel, I request you once again to subscribe to it so that you may get the useful lessons from time to time. So we are now starting the second poem of your syllabus, The True Beauty. The True Beauty is a beautiful lyric composed by Thomas Carey. You can notice the spelling of Carey, C-A-R-E-W. It is pronounced Carey. Thomas Carey. The True Beauty. I have tried my best to analyze this poem and explain it in Hindi in the easiest manner possible. You already know my name. So, The True Beauty. The title of the poem is The True Beauty. It indicates one thing. एक तरफ को इशारा करता है टाइटल कि ब्यूटी अगर ट्रू हो सकती है तो ब्यूटी शायद फॉल्स भी होगी. तो कोई एक ब्यूटी पोइट की नज़र में ट्रू है एंड द अदर काइंड ऑफ ब्यूटी इज फॉल्स. तो आइए देखते हैं कि which beauty is true and which beauty is false according to Thomas Carey. Thomas Carey, here is his picture. There is little information here. He was born in the year 1595, so he is a contemporary of William Shakespeare. He lived in England in the times of Shakespeare. 1595, born in England, and he died in the year 1639. So this is his picture, and now I would like you to hear the recitation of the poem. So please enjoy the recitation. He that loves a rosy cheek, or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts, and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never-dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. You must have heard the recitation. Now let us come to the poem word by word. He that loves a rosy cheek, There you are. or a coral lip देख सकते हैं आप यहाँ पर पोएम द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी, 1595 to 1639. अबाउट द पोइट इसमें दे रखा है, थोड़ा सा दिया है कहाँ पैदा हुए थे, फादर का नाम दिया है सर मैथ्यू कैरी. इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. एज फार एज द पोएम इज कंसर्न, जहाँ तक पोएम की बात है, पोएम जो है दो तरह की ब्यूटीज़ को डिस्क्राइब करती है, जिसमें से एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है. ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, सीधा पोएम पर ही चलते हैं. आइए,
He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. He that loves a rosy cheek, he that यहाँ आप who के सेंस में ले सकते हैं, वैसे that ही यूज किया जाएगा यहाँ। वो जो कि रोजी चीक को पसंद करता है, रोजी मीन्स रेड लाइक रोज, रोजी चीक यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफोर, ठीक है। कंपेयर किया गया है चीक को रोज से, बट द मीनिंग इज द कलर ऑफ द चीक्स इज लाइक द कलर ऑफ अ रोज। तो मेटाफोर, वो बंदा जो गुलाबी गालों से, गुलाब से गुलाबी वर्ड बनाए, रोज गुलाब और रोजी गुलाबी, पिंक चीक्स, ठीक है, पिंक मान लीजिए। तो जो वो बंदा जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, और कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर का मतलब है टू अप्रिशिएट, तारीफ करना, टू प्रेज। कोरल लिप का मतलब भी लगभग वही है, पिंक लिप्स, ठीक है, जो गुलाबी होठों को बहुत पसंद करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज जस्ट सीक, यस सितारे जैसी आंखों से मैं तलाशता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने जज्बात का ईंधन। फायर से मतलब यहाँ पर पैशन से है, एक्साइटेड फीलिंग्स, ठीक है। और मेंटेन का मतलब है टू कीप अलाइव, जिंदा रखना। और फ्यूल का मतलब है सोर्स, जिसे अपने पैशंस को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होता है? अपने बिलवेड के जो स्टार लाइक आइज हैं, वो स्टार लाइक आइज, ये सिमिली है बहुत साफ साफ, यहाँ पर भी कंपैरिजन है, लाइक दिया हुआ है ना, आइज विच आर लाइक स्टार। तो इसमें स्टार की कौन सी क्वालिटी को लिया गया होगा? स्टार की साइज को या स्टार की ब्राइटनेस को? ऑफ कोर्स स्टार की चमक को लिया गया होगा, क्योंकि आंखें स्टार की तरह बड़ी तो हो नहीं सकती, स्टार तो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे सन भी एक स्टार है। तो यहाँ साइज को की जो क्वालिटी वो नहीं ली गई है कंपेयर करने के लिए, यहाँ ब्राइटनेस को कंपेयर किया है। आईज ऐसे ब्राइट हैं जैसे कि स्टार्स। So you can see here rosy cheeks are the parts of body, lips are also parts of body, and eyes too are parts of body. The poet here means to say, if a person loves another person just because of his or her bodily beauty, physical beauty, is not a very intelligent one. Why so? वो बंदा जो इंसान की फिजिकल ब्यूटी को चाहता है, फिजिकल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। ब्यूटी आप समझते हैं ना, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी वो है, ब्यूटी इज एनीथिंग दैट प्लीजेज योर सेंसेस। ब्यूटी जो आपके सेंसेस को प्लीज करे। सेंसेस, 5 सेंसेस तो होते ही हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, फील करना, ऑल दीज आर कॉल्ड 5 सेंसेस। तो जो भी आपकी किसी भी सेंस को प्लीज करती है चीज़, दैट इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अगर बॉडीली फीचर्स आपके सेंसेस को प्लीज कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट there's something wrong too. वो क्या है? As old time makes these decay, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ओल्ड एज आती जाएगी। ओल्ड टाइम से यहाँ पर मतलब है ओल्ड एज। जब ओल्ड एज आएगी, मेक्स दीज का मतलब है ये जो ऊपर पार्ट्स ऑफ बॉडी आए हैं, रोजी चीक्स, जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी रोजी चीक्स
रोज़ी नहीं रहेंगे, चीक्स तो रहेंगे मगर उनका जो रोज़ है वो मुरझा चुका होगा। लिप्स तो रहेंगे मगर उनकी जो पिंकिशनेस है वो गायब हो चुकी होगी, झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी, ऐसी चीक्स पर झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी। कलर फेड हो चुका होगा, जो लाइंस हैं फेशियल फीचर्स वो बदल चुके होंगे, और जो आइज़ की ब्राइटनेस थी वो भी न जाने कहाँ खो चुकी होगी। आँखें ऑर्गन्स के रूप में तो रहेंगी लेकिन आँखों की जो पावर है, साइट है, वो डिम हो चुकी होगी। तो ये सब चीज़ें, रोज़ी चीक्स रोज़ी नहीं रहते, कोरल लिप्स कोरल नहीं रहते, स्टार लाइक आइज़ आइज़ तो रहती हैं स्टार की तरह, उसमें ब्राइटनेस नहीं रहती जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है। तो इन चीज़ों को ओल्ड एज क्या कर देती है, डिके, पावरलेस बना देती है। ये कभी इन चीज़ों में बहुत पावर होती थी टू अट्रैक्ट समवन, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन ये जितने एडजेक्टिव्स हैं सब हट गए। तो ये ऑर्गन्स अभी भी हैं लेकिन उनकी जो पावर टू अट्रैक्ट है वो ख़त्म हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है। किस वजह से? ओल्ड एज की वजह से। तो ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट करना या उससे टू मच अटैच्ड होना, इट्स नॉट अ वाइज आइडिया। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट। तो जब इन चीज़ों की कशिश खत्म हो जाएगी, इन चीज़ों का चार्म ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें अपना आकर्षण खो चुकी होंगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। वो जो बंदा है, जो लवर मान लीजिए, यहाँ हिज आया है तो लवर मान लीजिए, उसकी जो फ्लेम्स हैं, उसका जो एक्साइटमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वेस्ट अवे का मतलब डिमिनिश हो जाएगा या एंड हो जाएगा उसका, क्योंकि वो जिन चीज़ों के लिए अट्रैक्टेड फील करता था वो चीज़ें अपनी वो क्वालिटी खो चुकी होंगी। तो अब चूँकि वो चीज़ें अपनी क्वालिटी खो चुकी हैं तो उसका जो एक्साइटमेंट था वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लव है वो कम हो जाएगी। ही वुड नॉट लव द अदर पर्सन एज इंटेंसली एज ही यूज्ड टू व्हेन द अदर पर्सन वाज इन हिज और हर यूथ। ठीक है, तो ये फिजिकल ब्यूटी है, ये इसको क्या होना है? इसको डिके होना है, डिके होना है इसको, फिजिकल ब्यूटी, बिकॉज आवर बॉडीली पार्ट्स लूज देयर पावर ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरे टाइप की बात आई, तो इस वाली ब्यूटी को पोइट ने क्या कहा है? जो फर्स्ट 6 लाइन्स का स्टैंजा है उसमें जो ब्यूटी डिस्क्राइब की गई है वो फॉल्स है, बिकॉज वो कैसी है? वो चेंजिंग है। ठीक है, या ये समझ लीजिए फेडिंग है, मुरझाने वाली फेडिंग ब्यूटी, वो सुंदरता जो मुरझा जाती है समय के साथ साथ। तो ये इस टाइप की जो फेडिंग ब्यूटी है वही फॉल्स ब्यूटी है। पोइट जो है कहना चाहता है कि हमें फॉल्स ब्यूटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। बट a smooth and restless mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. But a smooth and restless mind, स्मूथ एंड स्ट्रेसलेस माइंड का मतलब है एक ऐसा दिमाग जो फर्म है, स्टेडी है, कंसिस्टेंट है। स्मूथ का मतलब कंसिस्टेंट, स्टेडफास्ट का मतलब फर्म यानी रेजोल्यूट, अपने इरादे पर अड़े रहने वाला। और स्मूथ से मतलब है कंसिस्टेंट, यानी ऐसा नहीं कि आज एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और है और 20 साल बाद एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और है। वो ऊपर वाले केस में होता है, उसमें एक्साइटमेंट का लेवल जो है घटता रहता है समय के साथ साथ। इसमें ऐसा नहीं, इसमें स्मूथनेस है, कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता है। ठीक है, इस तरह का डाउनवर्ड चेंज नहीं है। तो पोएट सेज दैट ये साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ ब्यूटी है,
ये ट्रू ब्यूटी है। इसी को वो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर भी कहता है। ठीक है, नेवर चेंजिंग एक्साइटमेंट या नेवर डिग्रेडिंग एक्साइटमेंट, स्मूथ एंड स्ट्रेसलेस माइंड, ऐसा दिमाग जो कंसिस्टेंट है, यानी जिसमें जो जोश है, खरोश है, वो वक्त के साथ कम नहीं होता। जो उत्साह 20 साल पहले था, 30 साल पहले था किसी बंदे के लिए, आज भी अगर वही है तो इट क्लियरली मीन्स दैट ब्यूटी इज ट्रू। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। ठीक है, थॉट्स कैसी होनी चाहिए? जेंटल, प्योर, हार्मलेस, है ना। वैसे नहीं होनी चाहिए नेगेटिव थॉट्स और इम्प्योर थॉट्स जिसमें पोजेशन वाली बात हो। आई वुड लाइक टू पोजेस द पर्सन whom I love, not this kind of thoughts। ठीक है, जेंटल थॉट्स मतलब प्योर थॉट्स, वेरी प्योर थॉट्स with no intention to harm the other person। and calm desires, जहाँ desires कैसे काम है, स्टॉर्मी नहीं है, जज्बात जो है तूफानी नहीं है, शांत इच्छाएं हैं। ठीक है, मतलब पैशनेट जुनून नहीं है इसमें। जुनून की जो उम्र होती है बहुत कम होती है। ठीक है, पैशन जो है, जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं या पॉजिटिव इमोशंस भी अगर अपनी पीक पर पहुंच जाएं तो वो पीक पर ज़्यादा टाइम नहीं रहते। इसलिए डिज़ायर शुड बी काम। ठीक है, शांत इच्छाएं होनी चाहिए, तूफानी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बस वो ऐसा होता है कि तूफान आता है और फिर कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाता है। तो ये कब होगा? व्हेन योर आइडियाज़ आर प्योर, व्हेन योर माइंड इज़ फ्री फ्रॉम डर्टी डिज़ायर्स। Hearts with equal love combined. Hearts, the two hearts, the hearts of the two partners, there should be equal amount of love. ठीक है, 100% from each side, not 50-50 or not 20-80 or 30-70. Equal amount of love from both the partners combined. Gentle thoughts, calm desires mixed with equal amount of love in both the hearts। ये कहना चाहे साफ सुथरी सोचें, शांत इच्छाएं और दो ऐसे दिल जिसमें एक दूसरे के लिए बराबर का प्रेम। ठीक है, 19-20 वाला ना। किंडल नेवर डाइंग डिजायर, नेवर डाइंग फायर्स। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो अब जो फायर्स होंगी, ऊपर जो फायर्स थी वो अलग थी, वो डिके हो जाती हैं, लेकिन ये जो फायर्स होंगी, ये जो एक्साइटमेंट होगा, ये जो इंथुसियाज्म होगा, ये नेवर डाइंग होगा। ठीक है, ये एवर लास्टिंग है, एंडलेस फायर्स। अब जो फ्लेम्स होंगी, अब जो लपटें होंगी, वो कभी भी ना बुझने वाली होंगी। मीन्स जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाएगा। किंडल से मतलब है एक्साइट और सेट गोइंग और टू इंस्पायर और मोटिवेट और टू गिव बर्थ टू। तो साफ सुथरी सोचें होंगी, शांत इच्छाएं होंगी, दोनों दिलों में बराबर का प्रेम होगा। तो अब जो लपटें होंगी या अब जो उत्साह होगा, अब जो जोश होगा, वो कैसा होगा? नेवर डाइंग, एंडलेस, यानी समय के साथ चेंज होने वाला नहीं होगा। नेवर डाइंग मीन्स कभी ना मरने वाली, ऐसे जज्बात जो कभी नहीं मरते, वो होगा। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। दीज का मतलब यहाँ पर क्या क्या है? जेंटल थॉट्स, काम डिज़ायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। ये तीन चीज़ें हैं। ऊपर भी एक दीज आया था, ठीक है, वो दीज बॉडी पार्ट्स के लिए आया था, चीक्स, लिप्स और आपका आइज़। और अब जो दीज आया है ये किसके लिए आया है? ये तीन है, जेंटल थॉट्स, काम डिज़ायर्स एंड हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। तो जहाँ पर ये नहीं है, ये तीनों क्वालिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, अभी जो बताएं, तो क्या है वहाँ पर? आई डिस्पाइज मीन्स आई डिसलाइक और आई हेट लवली चीक्स। कितने ही खूबसूरत गाल क्यों ना हो,
कितनी ही खूबसूरत होंठ क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत आइज़ क्यों ना हो, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, जेंटल थॉट्स, calm desires, hearts with equal love combined, then I don't like this kind of beauty. I do not feel attracted to such a person who is absent or who does not have these important qualities or in his or her character. कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ साथ बदलती जाती है, कम होती जाती है और एक स्टेज पर जाकर लगभग ख़त्म भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो बॉडीली ब्यूटी यानी फिजिकल ब्यूटी है वो एक तो ये है कि किसी उम्र तक रहती है, उम्र के ढलान के साथ साथ वो ब्यूटी भी ढलान पर आ जाती है। दूसरी बात, वंस यू आर डेड, जब आप मर गए, योर बॉडी डाइज, आपका शरीर भी मर गया, देन दैट ब्यूटी ऑल्सो डाइज, वो भी ख़त्म। वैसे तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, बुढ़ापा जैसे शुरू हुआ, लेकिन फिर भी मान लीजिए रही भी तो आपके मौत के साथ साथ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर है, ये जो ब्यूटी ऑफ माइंड है, इट ऑलवेज रिमेन्स इवन आफ्टर यू आर गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके दुनिया से जाने के बाद भी ये ब्यूटी रहती है, बनी रहती है। एंड दैट इज़ वाई द पोइट Thomas Carey has called this second kind of beauty the true beauty. We should also chase the second kind of beauty. Okay. And now ये देखते हैं हम कि इसमें मैंने आपको ऊपर बताया रोजी चीक में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है, मेटाफोर। ठीक है। कॉरल लिप्स में भी वही है, लिप्स एज पिंक एज कॉरल। ठीक है, छिपी हुई है तो सिमिली नहीं है, मेटाफोर हो गया। स्टार लाइक आइज, ये साफ साफ सिमिली है। फ्यूल भी यहाँ पर मेटाफोरिकली ही यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ फ्यूल सच में ईंधन से मतलब नहीं है। ठीक है, लकड़ियाँ और यह गैस वगैरह ये सब नहीं, ईंधन से वो मतलब नहीं है। ईंधन से मतलब यहाँ सोर्स है। ठीक है, उसे अपना एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता या क्या रिसोर्स चाहिए होता है, ये सब चीज़ें ऊपर की तीन, तो ये भी मेटाफोरिकली ही यूज़ किया गया है। और देख सकते हैं, एज दीज मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स वेस्ट अवे बट अ स्मूथ एंड स्ट्रेसफुल माइंड। ये जो लाइन है, बट अ स्मूथ एंड स्ट्रेसफुल माइंड, स्मूथ एंड स्ट्रेसफुल, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो एस और फिर एस। ठीक है, स्मूथ एंड स्ट्रेसफुल एलिट्रेशन है इस लाइन में। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। ठीक है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें नज़र आए। एक में और है एलिट्रेशन, लाइन नंबर 4 में देख सकते हैं आप, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, एफ और फिर एफ। ठीक है, इसे भी एलिट्रेशन ही कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूसली दोनों वर्ड्स रखे हुए हों, थोड़े गैप से हो सकते हैं। सो एलिट्रेशन, अनदर एलिट्रेशन देयर। तो मेटाफोर्स ज़्यादा हैं, सिमिली भी है एक, और आपके एलिट्रेशंस हैं। ये है आपकी इसका छोटा सा एनालिसिस। और जहाँ तक राइमिंग स्कीम की बात है, देख सकते हैं आप, चीक राइम्स विद सीक, एडमायर्स राइम्स विद फायर्स। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे। राइमिंग स्कीम देखिए, चीक राइम्स विद सीक, एडमायर्स राइम्स विद फायर्स, डीके अवे। तो पहले जो स्कीम है ए बी, ठीक है, उसके बाद फिर कपलेट दे रखा है। 5वीं और 6ठी लाइन में कपलेट है, यानी राइम कर रहा है डीके और अवे। पहली 4 लाइन की स्कीम अलग है और फिर कपलेट है। ऐसे अगला जो स्टैंजा है वो भी 6 लाइन का ही है, देख सकते हैं। माइंड राइम्स विद कंबाइंड, डिजायर्स, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं,
हम दोबारा से लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पड़ गई। देखिए यहाँ माइंड जो है वो किससे राइम कर रहा है, कंबाइंड से, और डिज़ायर्स कम राइम कर रही हैं फायर से। तो ये पहली 4 लाइन में स्कीम ये है, और अगली 2 लाइन फिर से कपलेट फॉर्म कर रही हैं, डिस्पाइज और आइज़। ठीक है, ये कपलेट है, जोड़ा है। ऐसे जोड़े यहाँ पर नहीं है, और पहली 4 लाइन में भी जोड़े नहीं है। जोड़ा जो है 5वीं 6ठी लाइन का बनाया है, तो इसे कपलेट कहते हैं, COUPLET, कपल से बना है कपलेट। ठीक है, एक कपलेट यहाँ पर है 5वीं 6ठी लाइन में, और एक कपलेट है 11th and 12th लाइन्स में। तो ये है छोटा सा एनालिसिस। ठीक है, कुल मिलाकर पोएम कंसिस्ट ऑफ 12 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास ऑफ 6 लाइन्स ईच। तो अब स्ट्रक्चर वाइज ये मैंने आपको एनालाइज कर दिया, एक्सप्लेन कर ही चुका आपको हिंदी में। बाकी आप जानती हैं, ग्लॉसरी आप समझ ही लेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं कुछ, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी, काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। यू शुड बी एबल टू राइट इट योरसेल्फ नाउ। और ये सब स्टैंजास हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा, काफ़ी इजी होना चाहिए। आई होप you have understood the poem very well, and if even now there is a confusion or doubt or query, you may ask me in the comment section. And yeah, once again, please subscribe to my channel if you have not yet done so. Thank you very much. Have a nice time.